Students, open your SST books. Page number is page number 8. Open page 8 of SST books. Hurry up. Turn your cameras on. Jean, turn your cameras on, students. Heather, Mohammed bin Faisal. So today, okay, in the previous lecture, I was telling you about understanding diagrams. Okay, we have done understanding graphs and pie chart. You have understand graphs, how we can understand graphs. Now we have to start from how we can understand diagrams. Okay, for this purpose, they have shown you a cross section of an apple. As you can see in figure 1.10, look at your books, figure 1.10 and figure 1.11. What are they telling you? What are they telling you about this apple is that if you just cut the apple from the middle line along the dotted line, as you can see figure 1.10, the dotted line. Okay, if you cut the apple from this dotted line, you will see that the apple will cut in two halves. दो halves हो जाएंगे ना apple के. Okay, so this will be the cross section of the apple. Figure 1.11. See in your books, or you can see on the screens as well. This is a cross section of an apple. Okay. इसी तरह जैसे अब हमने इस एप्पल को कट किया है, अब हमें ये इमेजिन करना है कि a huge knife cuts the valley. जैसे आपने ये एप्पल कट किया है, इस तरह से अगर हम इमेजिन करें कि if we cut the valley with a huge knife where the river meets in the photo figure 1.12. अब आप देख रहे ये बीच में से जहाँ से रिवर क्रॉस कर रहा है, इस फिगर में जहाँ पर बीच में से रिवर क्रॉस कर रहा है वहां से देखिए in the where the river meets in the photo figure 1.12, in the same way that we cut the apple, अगर हम इसी तरह से इसको यहाँ से कट करें, यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो हमें इसका क्या नजर आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन. जैसे आप देख सकते हो फिगर 1.13 में उन्होंने आप उसको क्या कर दिया, वैली को कट कर दिया. You can see that now it has taken the shape like this. अब आप देखो उसने ऐसी शेप ले ली है ना. ओके, तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वैली. तो फिर ये क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वैली. नाउ दे आर शोइंग यू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द वैली विद द फोटो 1.12. ठीक है, ये पार्ट ऑफ द वैली का क्रॉस सेक्शन है. पूरी वैली तो नहीं आपको दिखाई ना, इसमें सिर्फ पार्ट ऑफ द वैली दिखाई है. इससे नीचे वाली डायग्राम में वो आपको क्या बता रहे हैं, कैन यू सी. अच्छा इधर आ जाए, ब्लॉक डायग्राम्स पे आ जाए. आई एम रीडिंग दिस पार्ट ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स. फिगर 1.14 is a block diagram of the valley shown in the photo figure 1.12. अब आपने ये जो फिगर है ना, इसकी उन्होंने इस तरह से ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंट किया. ओके, उसका क्रॉस सेक्शन बनाया है ये मिडल से. ये देख रहे हैं आप लोग मिडल, जहाँ पे ये वाटर ब्लू रिवर शो किया हुआ है मैंने आपको. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये उसका मिडिल पार्ट है जहाँ से उन्होंने उसको कट किया है. दिस इज द मिडल पोर्शन ऑफ द वैली वेयर दे हैव कट इट. सो कैन यू सी दैट इट हैज अ क्रॉस सेक्शन इन द फ्रंट, द सेम क्रॉस सेक्शन एज इन फिगर 1.13. जैसे फिगर 1.13 में क्रॉस सेक्शन है, देखो वैसे ही है ना, ये यहाँ पे यू, और इसी तरह से बैक पर मिडल से ये क्रॉस मतलब कटिंग हुई है. So, but a block diagram also shows a block of land as if two has been cut out of the countryside with a huge land. Can you see which diagrams in section B are block diagrams? अब आप जब section B study करेंगे ना, तो फिर आपको इसकी
और समझ लग जाएगी ब्लॉक डायग्राम से कि व्हाट आर ब्लॉक डायग्राम्स. ठीक है. सो व्हाट आर ब्लॉक डायग्राम्स? Okay, now I want you to read from statistics. So once again, I'm telling you about this block diagram, how they have drawn it. Just they have cut the valley from the middle, where these 2 points are, these 2 lines are matching. They have just cut it from the middle. And in this way, they have brought this cross section as you can see in figure 1.4. Now we have to start from statistics. Yes, Rian, start reading. One minute, wait. Okay, you can read from the next page. I will tell you about the statistics. What are they telling you? There are sets of numbers about a topic. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन और रेनफॉल. अब स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं कि आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर दो टेबल की फॉर्म में या किसी ग्राफ की फॉर्म में. दिस इज स्टेटिस्टिक्स. सो देर आर सेट्स ऑफ नंबर्स अबाउट अ टॉपिक, जैसे उन्होंने आपको बताई, जैसे पॉपुलेशन और रेनफॉल. ठीक है. तो अब उसके लिए आपके पास अगर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हुई भी है जैसे रेनफॉल के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में, तो यू कैन जस्ट प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. आप उसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको किसी टेबल की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे इन्होंने यहाँ पर आपको क्या शो किया, जैसे हमने रेनफॉल की स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े थे. अब आपको क्या शो कर रहे हैं वो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स. पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स मींस हाउ मच पॉपुलेशन इज इन पाकिस्तान. सो परसेंटेज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और एज ग्रुप भी मेंशन है. ओके, एज ग्रुप इज आल्सो मेंशन्ड. सो एज ग्रुप इज मेंशन्ड एज वेल एज percentage is given. So age group 0 to 14, यानी जो बच्चे 0 यानी पैदा हुए बच्चों से लेके 14 साल तक के बच्चों के जो परसेंटेज है वो कितनी है, 46%. ओके, पॉपुलेशन कितनी है उनकी, 46% पॉपुलेशन है. फिर 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक 50%, एंड 60 प्लस 4%. वो आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज कितने एज ग्रुप की लोगों की है. तो 0 से 14 46% है, 15 से 59 ईयर्स तक की 50% है, और 60 प्लस वो ओनली 4% है. सबसे कम किसकी है, 60 प्लस. तो ये स्टैटिस्टिक्स है कि यू कैन प्रेजेंट any kind of data in the form of a table, okay, or you can say in the form of pie charts or graphs. So figure 1.9 was based on this table of statistics. Where is figure 1.9 in the previous page? अच्छा अच्छा, in the previous page आपने ये स्टडी किए था ना, हमने ये पढ़ा था ना, ये वाला पॉपुलेशन एज 14 एंड अंडर. तो इट इज ऑलमोस्ट हाफ. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी बेस पर उन्होंने ये पाई चार्ट बना दी. कैन यू सी दिस पाई चार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स. जो भी आपको उन्होंने इधर दिखाई है ना, इस स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, इस डाटा की बेस पे उन्होंने आपको ये पाई चार्ट बना के दिखाया. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम section B, that is topography. अब क्या लिखा है उन्होंने, in this section you will learn about how landforms are shown on maps. कि landforms किस तरह से नजर आते हैं maps पर, how that landforms vary, means there are different kinds of landforms, and that the earth is made of a core, mantle and earth की layers है ना. आपको पता है अर्थ जो है वो सिंगल लेयर नहीं है,
अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कोर है, मेंटल है और क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. So today you have to start reading from topo, or it is also called a relief. जी. Figure 1.16. फिगर 1.15 में आपसे पूछा गया which has the most rugged topography, A, B, C और D. किसकी सबसे ज्यादा rugged topography है, means uneven topography है? C. Yes, C. The answer will be C. G, Rohan, turn on your camera and you can start reading from how do we show the landscape on a map. How do we show the landscape on a map? Figure 1.6 is a block diagram of an imaginary landscape. It shows an area of mountain, peaks, hills, and valleys. Speak a little loudly. Rivers flow from the high ground through the Underline valleys. rivers आपको पता है ना, water. Rivers flow from the high ground through the valleys to the plain. Figure 1.7 is the same landscape. The topography or the shape of the area is shown by a series of colors and layers. Each layer shows the part of the land which is at the same height. Okay, stop reading. जी, तो अब आपको now they are telling you how do we show the landscape on a map. यानी अगर हमने landscape का मतलब यही होता है कि किसी पिक्चर, सीनरी, बेसिकली लैंडस्केप मीन्स बेसिकली सीनरी. यानी अगर आपने कोई सीनरी, कोई पानी के करीब लैंड की पिक्चर, कोई पहाड़ की पिक्चर, सम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ पिक्चर, ठीक है, लैंड पिक्चर विच यू वांट टू शो. तो अब आप अगर एक मैप पे शो करना चाहते हो, सो हाउ विल यू शो इट? फिगर 1.16 इज अ ब्लॉक डायग्राम. अब आप देखो ये जो फिगर है, ब्लॉक डायग्राम अब हमने पढ़ी है ना. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, be attentive towards your books, all of you. We have studied about block diagrams, and what we have studied in block diagrams, that if we just cut them from the middle, okay, so we will get the cross section of that area. Now figure 1.16 they are showing you a block diagram of an area. अब वो कह रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी लैंडस्केप है. यानी क्या है फिगर 1.16? एक इमेजिनरी लैंडस्केप. यानी हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर माउंटेन्स है, ठीक है, जैसे ये दूर जो है ये क्या है, ये माउंटेन्स है. इमेजिनरी है ना, सो वी कैन इमेजिन. आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. आप कह दो ये एक माउंटेनियस एरिया है, या आप कह दो कि जो है ये कोई डेजर्ट एरिया है, कुछ भी, कोई भी आप अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके आप समझ ले सकते, मतलब वो उसकी टोपोग्राफी, जो भी आप एरिया कंसिडर करेंगे वो उस एरिया की क्या होगी, टोपोग्राफी. इट विल बी द टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया. सो नाउ फिगर 1.16 इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इमेजिनरी लैंडस्केप. नजर आ रहे? It shows an area of mountain, peaks, hills and valleys. अच्छा, आगे उन्होंने आपको बता दी. अब वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये किस चीज की लैंडस्केप है, कि क्या शो कर रही है. इट इज शोइंग यू माउंटेन्स, पीक्स. ये देखो जो पीछे बैक में पर्पल है ना, हम वो उसको कह लेते हैं कि वो क्या है, वो माउंटेन्स है, माउंटेन पीक्स है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ जो है वो जरा ऊपर की तरफ जा रही है, तो वी विल से दैट दीज आर द माउंटेन्स. एंड हिल्स एंड वैलीज. अब हम ये भी कह लेते हैं कि यहाँ पर हिल्स भी है, यहाँ पर वैलीज भी, सब हम कंसिडर करते हैं, सब इमेजिनरी है, ठीक है. तब आपने सिर्फ सोचना है, अपने इमेज बनाना है अपने जहन में. यू हैव टू मेक एन इमेज. ओके. रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हाई ग्राउंड टू द वैलीज टू द. इसी तरह से हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये हाई ग्राउंड है ना, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है प्लेन्स की तरफ, ठीक है. सो रिवर इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू द from the high grounds towards the. जैसे आप फिगर 1.17 देख लें. फिगर 1.17 सेम है, सेम पिक्चर है ना एज अबव, तो इट इज द सेम लैंडस्केप. ये सेम लैंडस्केप आपको शो कर रहे हैं. The topography or shape of the area is shown by a series of colors in layers.
अब देखो उन्होंने आपको डिफरेंट कलर्स कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ग्रीन कलर क्या शो करेगा, लैंड प्लेन्स। ये ब्राउन कलर क्या शो करेंगे, दिस विल शो द हायर ग्राउंड। दिस पर्पल कलर इज शोइंग द माउंटेन्स और हिल्स, ठीक है। एंड इसी तरह से जो है ये बीच में आप देख लो, ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। सो अब मतलब यानी इमेजिन कर लेते कि ये हमने कलर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और इस तरह से ये एक हिली एरिया की का सीन है। इट इज अ लैंडस्केप ऑफ एन हिली एरिया which is telling you about what kind of place is there. So it is telling you the topography of that area. तो वो आपको क्या बता रहे हैं, द टोपोग्राफी और शेप ऑफ द एरिया इज शोड बाय अ सीरीज ऑफ कलर्स इन लेयर्स। अब आप देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट कलर्स इन ईच लेयर, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। देखिए लेयर्स बनी हुई है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट ब्लू, ग्रीन एंड लाइट ग्रेइश कलर, और इस तरह से कुछ कलर है लास्ट, ठीक है। तो ये आपको जो है वो बता रहे कि ईच layer is having a different color and each layer shows the part of the land which is at the same height. और जो मतलब एक लेयर है ना, जैसे ये एक लेयर है, फॉर एग्जांपल ये ब्राउन वन, फर्स्ट ब्राउन, इट इज टेलिंग यू दैट इट इज एट द सेम हाइट। ये होल लेयर जो है ये सेम हाइट पे। इसी तरह से जो लाइट ब्राउन है वो एक हाइट पे है, फिर उससे नीचे जो लाइट ब्लू है वो एक हाइट पर है, then green it is also at the same height. So these are the different topographies, and they are showing you that the color shows you that the height is the same, ठीक है। each color tells you that it is at the same height, the thing is at the same height। जैसे यहाँ पर अगर माउंटेन्स है ना ब्राउन कलर में, तो बता रहे कि ब्राउन कलर इज टेलिंग यू अबाउट द हाइट ऑफ माउंटेन्स, और वहीं पर जो है वो सेम हाइट पर। जैसे अगर ये ग्रीन कलर जो है वो आपको प्लेन शो कर रहा है, दैट इट इज टेलिंग यू दैट इट इज एट द सेम हाइट। ओके, रीड द लास्ट पैराग्राफ, फिगर 1.18 जो हमने आज पढ़ना है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट कैन रीड। जी हैदर, यू कैन रीड। फिगर 1.18 is a map of, So where it is? it is over here below these two diagrams, figure 1.18. Figure 1.18 is a map of the same area. The key on the map is very important because it shows how high the layers of land are above the level of the sea. For example, sea level, for example, Sea level 201 201 500 meters. 500 meter 500 meters. This layer of land rises from 201 meters above sea level to 500 meters above sea level. You will now be available to understand figure 1.19. able। ओके, अब पहले हम ये वाली फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिगर 1.8। इट इज द सेम फिगर। अब आप देख लो फर्क क्या आ गया कि नाउ दिस फिगर इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। अब ये मैप, अब ये जो फिगर है ये आपको उन्होंने किस पे शो कर दी है, मैप पे शो की। दैट्स द बेसिक डिफरेंस, ठीक है, इनमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ही कहाँ पर आ रहा है कि ये जो है पिक्चर तो सेम है बट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। मैप के साथ हमेशा हम क्या बनाते हैं, की बनाते हैं। We always make a key with a map. Whenever you want to make a map, you have to make a key. तो आप हमेशा उसके साथ क्या बनाते हो, की बनाते हो। और अब की जो है वो डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, की का मीटर्स में। रोहान, टर्न योर कैमरा ऑन, टर्न योर कैमरा ऑन स्टूडेंट्स। जी, सो अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ की गिवन विद द मैप। अब ये की आपको क्या बता रही है, that it is showing you the land in meters, okay, the distance in meters। distance उन्होंने आपको किस में दिया है, meters। जैसे सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है ये सरफेस एरिया जो बिलो वन है ना, जो लास्ट में है वो क्या है, जो उसकी डेप्थ है समझ लो, वो सरफेस एरिया है। और इसके बाद जो सबसे हाइट यानी जो पर्पल और ब्राउन कलर हमें नजर आ रहा है ना, ये सबसे ज्यादा हाइट है।
इट इज द मोस्ट हाइटेड प्लेसेस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स। तो जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर जहां पर हमने देखा है कि माउंटेन्स है, इट इज ओवर 4000। तो अब हम अगर हम इमेज मतलब इमेजिनरी सब कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये भी इमेजिनरी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स है ये कितने डिस्टेंस पे है, कितनी हाइट पर है, या ऑलमोस्ट एट अ हाइट ऑफ अबव 4000 meters. Okay, can you see the map, key students? Can you see the key? It is written over 4000. It means the mountains which are in purple color, they are almost over 4000 meters. 4000 meters से ज़्यादा है. Ryan, be attentive. Be attentive towards your books. उसके बाद you can see the brown color. ठीक है, यहाँ पर if we consider that there are hills present in this over this area, अगर हम ये कह लें यहाँ पर hills present है, so they are approximately at a height of 2001 till 4000 meters. ठीक है, वो कितनी हाइट पे है, 2001 से लेके 4000 meters तक हिल्स है। उसके बाद आप देख लो उससे नीचे अगर आप कहे कोई वैलीज है या इस तरह से एरिया है, तो इट इज एट अ हाइट ऑफ 1001 टिल 2000 meters। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कहें यहाँ पर वैली प्रेजेंट है, इस लाइट ब्राउन या स्किन कलर में क्या प्रेजेंट है, वैलीज प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट इट इज एट अ हाइट ऑफ 1001 टिल 2000। देन उससे बिलो भी हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि कोई रिवर्स के क्रॉस एरिया है, कोई इस तरह से। सो वो कितनी हाइट पर है, 500 से लेके 1000 meters तक। देन ये रिवर उन्होंने ये रिवर हम कंसिडर कर लेते हैं ब्लू कलर में, इट इज 200 से 500 meters तक। एंड द लास्ट व्हिच इज द प्लेन एरिया, इट इज फ्रॉम 0 टिल 200 meters। तो अब हमने ये सब इमेजिनरी कंसिडर कर लिया है कि इस मैप में हमने की बना दी है और इस पे मीटर्स में डिस्टेंस शो कर दिया, बता दिया है कि कौन सी चीज कितनी हाइट पे। तो ओरिजिनल मैप्स भी इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो हम ओरिजिनल उनको हम मेजर करके कि किस जैसे एक पहाड़ का कितना डिस्टेंस है जमीन से या सी लेवल के मुताबिक, वो हम फिर लिखते हैं। ये तो हमने सब इमेजिनरी किया है ना, समझने के लिए कि आप एक लैंडस्केप को मैप पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ हमने इमेजिन किया, दिस इज ऑल इमेजिनरी। बट नेक्स्ट पेज जो है उस पे हम इसको रियल में स्टडी करेंगे। सो टुमारो in the next lecture I will tell you about the original map. ठीक है, so have you understand it? Now I'm going to ask some questions from you. जी, you have to answer me. जी, Haider Abbas, what is the meaning of topography? Yes, Haider. What? Topography, it's written. What is the meaning of topography? क्या मतलब है इसका? Topography means when we describe the shape of Earth's surface in an area, topography. Tell me in your own words. Tell me in your own words. Don't repeat. The topography means आप that खुद बताएं। when we जी, when we हम क्या डिस्क्राइब करते describe the किस चीज surface. Yes, when we describe the surface area of Earth, that is called the top of an area of Earth, then we call that it is the topography of that area. Ji, who will again tell me the definition of topography? Yes, Rohan. Excuse me, teacher. जी, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछना है। मुझे आपसे ये पूछना है कि टीचर आपने हमें क्या नाम है व्हाट्सएप कर दिए चैप्टर नंबर 1 के बेसिक स्किल्स एंड लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन आंसर, वो ठीक है, उसके नीचे आंसर लिखे थे, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 के तो फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट टू पोज के तो आंसर ही नहीं लिखे, और अभी आपने वो पढ़ाया ही नहीं है। आपको चैप्टर 2 मिल गया? टीचर जी हमें मिल गया, उसमें आंसर तो नहीं लिखे हुए।
अच्छा ठीक है, उसमें आपने जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी चैप्टर आपने तब वो करना, अभी नहीं करने बैठ जाइएगा, अभी आप बंद करें, फिर जब हम उसको रीड करेंगे तो हम साथ साथ उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, जो कंफ्यूजन होगी तब पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं भी अब वही बताएं सोच रहा था कि टीचर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया ओके, नहीं, नाउ नोट्स टेल मी पहले अबाउट आपने भेज दिए। टोपोग्राफी। The topography describes the earth surface of an area. जी, नेक्स्ट Figure स्टूडेंट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, यस नूरुल इमान, you can tell me, yes Nurul Iman, you can tell me which is the most rough surface, इसमें से बताएं सबसे ज्यादा rough surface कौन सा है? Yes Nurul Iman, टीचर क्या कह रही हैं? which is the most rough surface, इसमें से A B C D जो ऑप्शन गिवन है, रफ सरफेस, uneven सबसे ज्यादा uneven surface कौन सा है? डी। It's not B. डी Yes टीचर, Momin, can you tell me? डी टीचर, B is wrong. जी मोमिन C? आप बताएं। C. जी it's C. It's C. C is the most rough surface. ठीक है? Okay now, अब मुझे इस फिगर 1.16 के बारे में, who will tell me about figure? Yes Fatma, please. You can tell me about figure 1.16. What they are showing you? Is it an imaginary picture or what? यस टीचर। What are they telling you about this picture, figure 1.16? क्या बता रहे हो? टीचर दिस इज एन इमेजिनरी। जी. So, what kind of landscape can be it? समझ नहीं आ रही। What kind of landscape can be shown on figure 1.16? क्या किस किस्म का landscape है? The green color show the ये- land, plain, and the purple show the hills. जी, purple color shows the hills, green shows the plain, and so And it brown. means that it is the topography of what? It is topography of Landscape. किस किस्म के लैंडस्केप की, किस तरह के लैंडस्केप की? इज इट अ हिली एरिया और सम प्लेन एरिया? क्या शो कर रहे हो आपको? Yes Riyan, you can tell me. Teacher, it is both hilly and plain area. They are showing you, basically they are showing you a hilly area. Okay, they are showing you a hilly area. कैसा hilly area? और फिर अब आप इसको मुझे बताएं, how can you describe it on a map? Yes, now who will tell me? Yes Malik, Mikhail. Yes, you can tell me how can we show it on a map? I unmuted you. Teacher, generator. 1 minute. G Faisal, why your camera is turned off? You can tell me. G, unmute yourself. Imtisal, students, why you are not unmuting yourself? Okay, Ryan, you can tell me. How can we describe it on a map? Teacher, the purple area shows the hills and mountains. The brown shows the higher ground. The green shows the plain area. The blue shows the ठीक है, water. but हमें help किस तरह मिलेगी? How can we help to find things on a map? Which thing help us?